welcome back to one more video, and in today's video we are going to study the next topic of chapter classification of elements and periodicity in their properties. In previous class we studied that how to calculate PUBG, and those who have not watched that video, please go and just watch that video. You will really enjoy it. Now in today's class we are starting with the periodic properties of elements. Now before that, let me make you understand about the concept periodicity. Now let's see that what do you mean by periodicity. Periodicity, it means when we are moving from group it means from top to bottom, right? And when we are moving along a period it means from left to right. Okay, so always by doing this sign convention we can always keep in mind. So there, when we are moving along a group or when we are moving along a period, always there are some repetition of few properties, and those properties we are going to study, and thus properties are known as periodicity of the element. Now in periodicity of these properties, what all points we are going to cover. So in this schedule we are going to cover all the points, and those points are, first point here I am writing, and that one is we are going to complete atomic radius. So atomic radius is such a point which can affect the properties when we will say that when we are moving from top to bottom, when we are moving from left to right. So this property may affect, it means atomic size of the element may decrease or increase. So why this is happening, what the regular trend we are going to study, that this is only today's topic. Okay, so let me start with atomic radius first. Now atomic radius in class 10th as well as in 9th we have studied about it. What is atomic radius? So atomic radius, often what we are saying that it is a distance between nucleus and the outermost shell, right? So here I can draw in this way that consider that this is the nucleus which is positively charged, this is first shell, this one is second shell, and this is third shell. So often what we are saying that what is atomic radius? Atomic radius, it means distance from the nucleus to the outermost shell. But student, when we are there in class 9th and 10th, at that time we studied this, but as we have studied the chapter structure of atom, we know very well that these boundaries are not specific. Got it? What I want to say? I want to say that atom boundaries are not definite. Now why we are saying that not definite? Because we know about the electron, and electron is moving in a wave structure, and that's why we are saying that the atom boundaries are not definite. Okay, so if now I'll be explaining it in Hindi, and that one is जैसे कि अगर हमें एटॉमिक रेडियस पता है, हमने कहा है कि भाई एटम का बाउंड्री सरफेस डायग्राम जो रहता है वो फिक्स्ड नहीं रहता, एग्जैक्ट हम नहीं ले सकते, और इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट तो फिर एटॉमिक रेडियस कैसे कैलकुलेट करनी. एटॉमिक रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एटॉमिक रेडियस हम ये देखते हैं कि हाउ दीज एटम्स आर बॉन्डेड. How these atoms are bonded. On the basis of that we are calculating the atomic radius. So on the basis of this bondation of the atoms we can classify this atomic radius. Now I'll explain one by one. We can classify this as a covalent radius. First, covalent radius. Second one is the metallic radius. Third one is van der Waals radius. Okay, and fourth one is ionic radius. Now let's understand one by one. Now if we are discussing about covalent radius, so covalent radius means what? जैसे अगर हमें पता है कि अगर कोई ये दो एटम्स है, अगर ये कोई दो एटम्स है और ये एक दूसरे के साथ में कोवैलेंटली बाउंडेड है, ये दोनों एटम्स कैसे एक दूसरे के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड है, तो हमने क्या कहा? कोवैलेंटली बाउंडेड है. कोवैलेंटली बाउंडेड मीन्स क्या होता है? कोवैलेंटली बाउंडेड इट मीन्स उन दोनों ने क्या किया है? शेयरिंग किया है.
तो इन दोनों के एटम्स के बीच का जितना भी डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस का हाफ इट मींस कोवैलेंट रेडियस. सो हियर आई विल राइट इट एज अ कोवैलेंट रेडियस मींस व्हाट? कोवैलेंट रेडियस इट मींस हाफ डिस्टेंस बिटवीन A and B. सो ये मैंने A कहा है और ये B कहा है. अब फिर से ध्यान से समझो कि भाई ये कोवैलेंट रेडियस होता क्या है. तो कोवैलेंट रेडियस में हमने क्या कहा? कोवैलेंट रेडियस वो होता है कि जैसे अगर हमने ये दो एटम्स लिए, ये दोनों एटम्स कैसे कोवैलेंटली बाउंडेड है. कोवैलेंटली बाउंडेड है मींस क्या है? वो ओवरलैप है. और जब भी ये ओवरलैप रहते हैं एक दूसरे के ऊपर तो इनकी कोवैलेंट रेडियस हम इस तरीके से हम निकाल सकते हैं. और जनरली कोवैलेंट रेडियस कौन शो करता है? हम कहेंगे कोवैलेंट रेडियस जो शो करता है जनरली ये कौन शो करते हैं? नॉन मेटल्स शो करते हैं. इसमें हम नोबल गैस को इंक्लूड नहीं कर रहे. ये भी चीज हमें ध्यान से याद रखना है कि हम इसमें नॉन मेटल्स में नोबल गैसेस को इंक्लूड नहीं करते. सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि ये कोवैलेंट रेडियस एक्चुअल में होता क्या है. नाउ चलो अभी हम देखते हैं मेटालिक रेडियस. ओके, सो व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट मेटालिक रेडियस, तो मेटालिक रेडियस में क्या होता है कि जैसे अगर हमने मान के चलो कि कोई भी एक मेटल का एटम कोई भी मेटल ले लिया हमने, तो मेटालिक रेडियस हम क्या कहते हैं कि भाई जो भी डिस्टेंस रहता है उन दोनों एटम्स के बीच में, जैसे अगर ये कोई मेटल है, ठीक है, ये क्या है? एक मेटल है. इस मेटल में क्या है? ये सभी इलेक्ट्रॉन्स है. क्या है? ये सभी इलेक्ट्रॉन्स है. तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होता है? बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है. कैसे रहता है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है. वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और ये किस में होता है? ये एक मेटल क्रिस्टल लैटिस में होता है. ये एक मेटल क्रिस्टल लैटिस में होता है और जिसे हम क्या कहते हैं? मेटालिक रेडियस. जैसे कंसिडर करो कि ये पूरा ब्लॉक जो है ये मेटल का है और इस मेटल में कहीं कहीं पर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री रहते हैं मेटल्स के अंदर. वो उसमें उसका मेटल जो क्रिस्टल बना रहता है, उसका जो शेप रहता है, उसमें उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसे कहा जाता है मेटालिक रेडियस. तो हमें पता है हम ये मेटालिक रेडियस कौन दिखाते होंगे? ये दिखाते होंगे मेटल्स. मेटल्स में ही क्या होती है? मेटालिक रेडियस होती है. ओके, हम ये नहीं कहेंगे. अगर आप ये कहते हो कि भाई रेडियस बिटवीन द टू मेटल्स, देन टोटली रॉन्ग. हमें क्या कहना है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज डेवलप्ड बिटवीन the atoms or the electrons of the metal crystal lattice और उसे कहा जाता है metallic radius. Okay, now let's understand covalent radius. Let's understand covalent radius. अब covalent radius, let me tell you that covalent radius is shown by noble gases. कोवैलेंट रेडियस कौन दिखाता है? नोबल गैसेस दिखाता है. अब नोबल गैसेस में कैसे दिखाता है? जैसे अगर मान के चलो नोबल गैसेस सभी कैसे होती है? मोनो एटॉमिक होती है. नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक है. अगर मोनो एटॉमिक है तो उनके बीच में जो है ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. ठीक, सो इन दोनों एटम्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसे कहा जाएगा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two atoms और जिसे कहा जाता है वैन डर वाल्स रेडियस. राइट, सो वैन डर वाल्स रेडियस जनरली कौन दिखाता है? नोबल गैसेस दिखाते. अब हम आते हैं आयोनिक रेडियस की तरफ. आयोनिक रेडियस का मतलब होता है कि भाई डिस्टेंस और रेडियस. डिस्टेंस तो नहीं कहेंगे हम इसको, हम सिंपली कहेंगे कि भाई क्या होता है? ये होता है रेडियस ऑफ आयंस. जो भी आयंस की रेडियस रहती है उसे हम कहते हैं आयोनिक रेडियस. तो वन बाय वन हम जो इसके बारे में और ज्यादा स्टडी करेंगे और ये स्टडी करेंगे कि भाई ये किस तरीके से वैरी करती है जब हम इसको पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टडी करें. वी स्टडीड दैट दिस एटॉमिक रेडियस जो है ये कैसे हो सकती है? ये कोवैलेंट रेडियस की तरह भी हो सकती है. हमने क्या कहा? इसको कोवैलेंट रेडियस की तरह भी कहा है. राइट, और साथ में हमने ये भी कहा है कि भाई ये एटॉमिक रेडियस जो होती है ये मेटालिक रेडियस की तरह भी हो सकती है. मेटालिक रेडियस. ओके, और थर्ड जो है हमने कहा है वैन डर वाल्स रेडियस भी हमने इसको कहा है. सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री.
Okay, here I am drawing, so it would be easy for us to understand the difference between these three. तो देखो इसको समझते कैसे हैं हम ये देखेंगे कि भाई जैसे अगर ये एक ये टू इलेक्ट्रॉन टू एटम्स है ए और बी, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, जैसे ये इसके और इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है इसे कहा जाता है, या फिर हम ऐसा भी दिखा सकते हैं इसको, ये जो डिस्टेंस यही तक दिखाती हूं मैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, और इतने डिस्टेंस को कहा जाता है कोवैलेंट रेडियस। इसको क्या कहते हैं? कोवैलेंट रेडियस। क्यों? क्योंकि ये कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच के डिस्टेंस है। अगर हमारे पास में एक और है, जैसे सी एंड डी अगर है हमारे पास एक और है सी एंड डी, तो हमने इस तरीके इसको सी एंड डी जो है इसको अपन अच्छे से कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ओके, सो ये हमारे पास एक और है, ये भी कैसे कोवैलेंटली बॉन्डेड है, तो इनके बीच का भी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट रेडियस कहते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये क्या होगा? कोवैलेंट रेडियस होगा। और अब ध्यान से देखो, ये और ये, तो हमने क्या कहा है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या होता है? टू एटम्स के बीच का, तो ये हो जाएगा आपका वैन डर वाल्स अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स अट्रैक्शन और वैन डर वाल्स रेडियस, ये हो जाएगी वैन डर वाल्स रेडियस। ओके, और जब अगर हम मेटालिक रेडियस की बात करें तो कंसिडर करो कि ये एक कोई कैल्शियम का क्रिस्टल लैटिस है, तो कैल्शियम के क्रिस्टल लैटिस में हम क्या देखते हैं? पॉजिटिवली चार्ज भी रहते हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज आयन रहेंगे और साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, तो इनके बीच में जो भी रेडियस रहेगी उस रेडियस को कहा जाता है मेटालिक रेडियस। और ये है क्या? ये एक मेटल क्रिस्टल है। Okay, now let's study the trend of atomic radius in periodic table. So periodic table में हमें atomic radius का trend study करना है, और अभी हम individual study करने से अच्छा है कि हम एक साथ सभी का trend study करते हैं, और इसीलिए हम वो word जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम atomic radius. Okay, एक और जो हमें पता होना चाहिए और वो ये है कि हमेशा याद रखो कि कोवैलेंट रेडियस जो होती है ये सबसे छोटी होती है। कोवैलेंट रेडियस हमेशा सबसे छोटी होती है, उससे ज्यादा रहती है मेटालिक रेडियस, उससे ज्यादा रहती है वैन डर वाल्स रेडियस। सो स्टूडेंट, आपको सबको पता होना चाहिए कि भाई कोवैलेंट रेडियस सबसे छोटी होती है, फिर आती है मेटल रेडियस, और उसके बाद में सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी? वैन डर वाल्स रेडियस होगी। और इसीलिए नोबल गैसेस की जो रेडियस जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि नोबल गैस जो है वो सबसे लास्ट में रहते हैं, और नोबल गैस में कौन सा रेडियस होती है? हमेशा वैन डर वाल्स रेडियस होती है। ओके, चलो अब हम आते हैं ट्रेंड की तरफ कि हमने ट्रेंड क्या स्टडी किया है। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, तो देखो एटॉमिक रेडियस के लिए हम याद ऐसा रखेंगे कि भाई एटॉमिक रेडियस जो है ये इस तरीके से बात कर रही हो, इट मींस अलोंग अ पीरियड आई एम टॉकिंग। अगर इस तरीके से बात कर रही हो, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप। तो हम ये देखते हैं कि हम जब ऐसे जाते हैं इट मींस लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो फर्स्ट हम देखेंगे पीरियड में क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, atomic radius decreases along period। ठीक है, अब मैं ग्रुप की बात करूं तो देखो ग्रुप में क्या लिखूंगी मैं? atomic radius increases along group। it means जैसे ही आप यहाँ टॉप टू बॉटम जाते हैं, जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होती है, और एटॉमिक रेडियस जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अलोंग अ पीरियड जाते हैं, तब एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है वो अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जैसे एटॉमिक रेडियस हमने क्या कहा कि भाई अगर हम डिस्कस भी करेंगे इसका, तो अगर मैं ये इसकी बात कर रही हूँ, ये कौन है? लिथियम है, तो लिथियम का साइज बड़ा रहेगा, फिर लिथियम के बाद में बेरिलियम आता है, उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, कार्बन का और छोटा होगा, फिर इस तरीके से जो है इसका साइज जो है ये छोटा होते जाता है। तो साइज छोटा क्यों हो रहा है ये हमें समझना है। तो हम ये कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन
effective nuclear charge, due to increase in effective nuclear charge, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही हम टॉप टू बॉटम हम जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले इसका साइज बड़ा रहता है, फिर छोटा होता है, फिर छोटा होता है, फिर छोटा होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमने ये वर्ड कहा कि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से हो रहा है ये। अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस कैसे होता है? देखो जैसे इसका कितना होता है, इसमें कितने हैं +3 चार्ज है। अगर लिथियम की बात करो, अगर बेरिलियम की बात करो तो ये कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। अगर उसके बाद में मैं बोरॉन की बात करूं तो +5 हो जाएगा। कार्बन की बात करूं तो +6 हो जाएगा। फ्लोरीन की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो ये जब आप देखते हो तो ये एटॉमिक नंबर इनका इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है और उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। तो वो क्या करता है? अपने सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ऐसे खींच के रखता है। और जब वो अपनी तरफ खींच के रखेगा, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ में प्रॉपर अट्रैक्शन होगा तो उसका साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो मैं आपको नेक्स्ट एक जब शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाऊंगी उस वक्त में मैं आपको बताऊंगी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैसे हमें पता चला कि भाई बेरिलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? कम है, और बोरॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। इसीलिए बेरिलियम का साइज बड़ा है किसके कंपैरिजन में? बोरॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अभी हमें अगर कोई पूछता है कि भाई क्या ट्रेंड है इसमें, किसका साइज बड़ा है, लिथियम का साइज बड़ा है या बोरॉन का साइज बड़ा है, तो हम सिंपली कह सकते हैं यस लिथियम का साइज बड़ा है। क्यों साइज बड़ा है उसका? क्योंकि उसका न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या है? कम है एज कंपेयर्ड टू बोरॉन। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे एटॉमिक रेडियस अलोंग अ ग्रुप। तो हमने क्या कहा? एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस अलोंग अ ग्रुप। ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? ड्यू टू increase in number of shells, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। चलो अब इसको समझो ध्यान से कि हमने क्या कहा। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, तो जब आप इसमें जा रहे हो तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। इसका कितना है? 11 है। इसका 19 है। तो जब आप देखोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? देखो ये 2 और 1, 2 नंबर ऑफ शेल्स है। ये कितना हो गया? 2, 8, 1, ये 3 नंबर ऑफ शेल्स है। जब आप इसका प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये 4th शेल में चला जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, कहां पर अट्रैक्शन है? लास्ट में, लास्ट शेल के पास में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका अट्रैक्शन कम होने की वजह से न्यूक्लियस जो है प्रॉपरली उसको अपनी तरफ खींच के नहीं रख सकता, और इसीलिए इनका साइज जो है जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो उनका साइज क्या होते जाएगा? बड़ा और बड़ा साइज होते जाएगा। और इसीलिए हमने कहा कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस अलोंग द ग्रुप बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। सो स्टूडेंट, इस टॉपिक में यही तक टॉपिक एक खत्म नहीं हो रहा है। इस टॉपिक का एक और पार्ट है जिसमें मैं आपको इसके आगे का डिटेल्ड में समझाऊंगी। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी in the comment section. I will definitely try my level best to clear your doubts. So student, I hope everyone understood today's topic, and I'll be uploading very soon the second part of the same atomic radius. So thank you students and have a good day ahead.